नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कलकत्ता में ममता बनर्जी को एक बार फिर से हाईकोर्ट के द्वारा झटका लगा है। बड़ी खबर इस वक्त की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या करने की कोशिश कर रही है, एक बार जरा जान लीजिए और इसको गहनता से सोच लीजिए कि तुष्टीकरण की राजनीति में ममता बनर्जी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। बड़ी खबर, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार को झटका दिया है, हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जो आरक्षण की सूची बनाई गई थी, ओबीसी सूची को रद्द करने का यहां फैसला दे दिया है। और इससे ममता बनर्जी को इसीलिए झटका लगा है क्योंकि आपको बता दें, इस ओबीसी आरक्षण में अल्पसंख्यक को भी जोड़ा गया था। और यही खबर है जिसके बाद ममता हाई कोर्ट पर बिफर पड़ी हैं और कह रही है मैं ये राय और मैं ये फैसला नहीं मानूंगी। यहां तक कि जो जज हैं हाई कोर्ट के, उन्हें भी खरी खोटी सुनाई कि सुनने में आ रहा है एक जज है जो मशहूर हैं। यानी कि क्या कहना चाहती है ममता बनर्जी? ममता बनर्जी को हर उस बात से आपत्ति है जब इनके हित में कोई फैसला नहीं आता। यानी कि आपकी सरकार बन जाए तो खुलेआम आपको जो मन वो तो करने नहीं देगी वहां की पब्लिक। यह हाई कोर्ट, यहां न्यायाधीश इसलिए बैठे हैं कि सरकार पर भी लगाम लगा सके। और बता दें, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबको झटका लगता है हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। केवल ममता बनर्जी नहीं है। ममता बनर्जी ने खुलेआम चुनौती दी है कि हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगी। कह रही है जो 26,000 नियुक्तियां जो रद्द की गई, उसके बाद मैं ये फैसला नहीं मानूंगी। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, অনেক ব্যাপারে বিখ্যাত, কাজ নেই কর্ম নেই। কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না, এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে, যে রায় দিয়েছে যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায় এটা আমরা মানবো না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। সাহস কত বড়! কোর্টে কখনো ভাগাভাগি হয় না, দেশে কখনো ভাগাভাগি হয় না। এটা কলঙ্কিত অধ্যায়। কেউ বলতে পারে আমি হিন্দুকে বাদ দিলাম, মুসলমানকে রাখলাম। কেউ বলতে পারে আমি মুসলিমকে বাদ দিলাম, হিন্দুকে রাখলাম। আরে এরা জানে হিন্দু বলতে ওখানে কারা আছে? আমি তপশিলীদেরও আমি করিনি এটা। এটা উপেন বিশ্বাস তখন চেয়ারম্যান ছিলেন। বাড়ি বাড়ি সার্ভে করে করে আমরা ওবিসি রিজার্ভেশন করেছিলাম। 12 সাল থেকে চলছে। কোর্টে আগেও কেস হয়েছিল, কেস খালি হয়ে গেছিল। স্পর্ধা তো কম নয়। একটা সরকার কি পলিসি নেবে, সেই পলিসি নিয়ে যাও না। বিজেপির একটা পলিসির ব্যাপারে একটা কথা বলবার সাহস আছে না, হিম্মত আছে? কিছু দালাল হঠাৎ করে 26,000 চাকরি খেয়ে নাও, ওবিসিতে রিজার্ভেশন বন্ধ করে দাও, হবে না। তাও ভাগ করে করে দিয়েছে, মুসলিমদেরটা একেবারে ভাগ। কেন? মুসলিমরা আমার দেশের নাগরিক নয়? মনে রাখবেন, আমি হিন্দুও করি, আমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, আমি মুসলিমও করি, আমি তপশিলীও করি, আমি আদিবাসীও করি, আমি পার্সিকও করি, আমি বৌদ্ধও করি, আমি জৈনও করি, আমি সবটাই করি। এবং আমার বলে রাখি, এটা ক্যাবিনেট করে পাশ হয়েছে, অ্যাসেম্বলিতে পাশ হয়েছে, কোর্টের রায়ও আছে। যারা ইলেকশনের আগে এই সব নিয়ে খেলা করছেন, সন্দেশখালি নিয়ে করলেন চক্রান্ত 1, ফাঁস হয়ে গেল। দাঙ্গা নিয়ে করবার চেষ্টা করলেন, চক্রান্ত 2, এখনো মাথায় ঘুরছে হিন্দু মুসলমানে ভাগ করবার। 3,
প্রধানমন্ত্রী এই কথা কখনো বলতে পারে যে সংখ্যালঘুরা তপশিলীদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে? আমি তো বলবো উনি বলতে পারেন না। তার কারণ এটা সাংবিধানিক অধিকার। তপশিলীরা তপশিলীদের অধিকার সাংবিধানিক হিসাবে পায়, আদিবাসীরা আদিবাসীদের অধিকার সাংবিধানিক অধিকারে পায়, ওবিসিরা সংবিধান অনুযায়ী সংবিধানে কাঠামোর মধ্যে থেকে এই ওবিসি রিজার্ভেশন করা হয়েছে। সুতরাং তোমরা কে? শুধু একটা ভোট রাজনীতির জন্য, একদিনের জন্য 5 বছরে থাকবে বলে, 5 বছর চুরি করবে বলে, 5 বছর করে খাবে বলে, একটা কাঁচা রাজনীতির জন্য দেখলেন আপনারা সংবাদপত্রে কি ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হলো। কোর্টের রায় বলে দিয়েছে এর থেকে নিম্নমানের আর কিছু হতে পারে না, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়, এটা অন্যায়, এই ধরনের বিজ্ঞাপন করা যাবে না। আর যারা করেছে আমি তাদের বিরুদ্ধে আমি ব্যক্তিগতভাবে ডিফামেশন করব। তার কারণ একটা এভিডেন্স দিয়ে প্রমাণ করতে হবে আমি 1 পয়সাও কারো খেয়েছি। প্রমাণ না করতে পারলে তাকে আমাকে 1000 কোটি টাকা দিতে হবে, আমি জনগণকে দিয়ে দেবো। রায় আমি পেয়ে গেছি, এবার খেলাটা আমার হবে। আরে ও তো আমি আসবো লাস্টে, টাইম বেশি নেই। কি বলছে বাবুরা? ঘরে ঘরে বিনা পয়সায় গ্যাস পৌঁছে দিচ্ছি, বিজেপিকে ভোট দিন, এটা নাকি বিজেপির গ্যারেন্টি। আমি বলি নো গ্যারেন্টি, 420। বলছে সৌরশক্তির মাধ্যমে ঘরে ঘরে বিনা পয়সায় বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে। আপনারা এটা বিশ্বাস করেন? সবার ঘরে ঘরে পৌঁছতে এটা সম্ভব? একটা বাড়িতে, তার বাড়িতে সে একটা তৈরি করতে পারে, একটা সোলার কিছু একটা तैयारी করলো। आइए एक बार आपको बताते हैं कि सर्टिफिकेट रद्द होने के आसार जो हैं, यहां पर कहा जा रहा है 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट हाई कोर्ट के आदेश के बाद रद्द हो जाएंगे, जिससे ममता बनर्जी के वोट बैंक में बड़ा असर पड़ेगा और इसका असर आने वाले अगले चुनावों पर भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये चुनाव तो निकल रहा है अब। इसके साथ मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री ने कड़ी आपत्ति जताई है, कह रही हैं मैं इस फैसले को स्वीकार नहीं करूंगी। जब 26,000 शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था तो मैंने कहा था हम उस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं, बीजेपी ये करा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर हाई कोर्ट के फैसले पर भी ठीकरा फोड़ना मैं चाहूंगी। क्या आपको लगता है कि हर बात पर बीजेपी पर ठीकरा फोड़ना सही है? कह रही है बीजेपी एजेंसियों से कर रही है, जो काम बीजेपी नहीं कर पाती है तो एजेंसियों के साथ करती है। संविधान के साथ ये साफ साफ आरक्षण पर छेड़छाड़ है। और देखिए अभी आरक्षण का मुद्दा हर पार्टियों ने छेड़ा हुआ है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या ममता हो। ममता तो खैर आपको पता ही है कि इस बात के लिए मशहूर है। इधर आ जाते हैं, प्रधानमंत्री ने जो कह दिया है कि मैं जब तक जिंदा हूं, मोदी जब तक जिंदा है, आरक्षण के साथ, संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। मैं संविधान के लिए मरने मिटने को तक तैयार हूं। और अमित शाह की बातों को कैसे फेक बनाया गया, कैसे उल्टा घुमाया गया, इस पर भी कार्रवाई हुई थी, आपको याद होगा। तो देखिए आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जहां पर लोग तुरंत भड़क जाएंगे और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। पार्टियां चाहे बहुमत में हो, चाहे वो सरकार में ना हो, किसी को ये हिम्मत नहीं है, किसी को ये छूट नहीं है देश के अंदर। तो सरकार को जब छूट नहीं है, जो भारत सरकार चला रही है बीजेपी, तो अन्य पार्टियों को क्या छूट होगी? आपको बता दें इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी कह रही हैं जिसने भी फैसला दिया है मैं नहीं मानूंगी। फैसले के बारे में यही कहा जा सकता है बीजेपी का फैसला है, मतलब हाई कोर्ट का फैसला है ये, और कह रही है बीजेपी का फैसला है। कह रही हैं हम स्वीकार नहीं करेंगे, ओबीसी आरक्षण रहा है और जारी रहेगा। आपको बता दें ओबीसी आरक्षण अलग होता है, लेकिन अल्पसंख्यकों को इस लिस्ट में जोड़ना और 2010 के बाद जितनी लिस्ट बनी है उसको हाईकोर्ट ने दर्शकों को रद्द कर दिया है। बता दें आपको ममता बनर्जी ने एक और दावा किया है, एक बार फिर से वो एनआरसी और सीए का राग छेड़ रही थी उसी अपने पश्चिम बंगाल की एक रैली में, और कह रही हैं कि जिस तरीके से उन्होंने दावा किया कि जो आरक्षण सूची रद्द हुई है तब उपेंद्र विश्वास चेयरमैन थे, घर घर जाकर उन्होंने ओबीसी को बचाया था। यह 2012 से चल रहा है। ममता बनर्जी के मुताबिक इन ओबीसी को संविधान के दायरे में आरक्षण दिया गया। सोचिए ममता बनर्जी ने एकदम झूठ बातें यहां कह दिया कि इन ओबीसी को जितने को आरक्षण दिया गया वे
संविधान के अंतर्गत आता है। जबकि आपको पता है कि बांग्लादेशियों को वोट दिलवाने का हो, उनकी वोटर आईडी बनाने का हो या फेक वोटर आईडी, ये पश्चिम बंगाल में आम बात है। तो क्या आरक्षण के मुद्दे पर ये जो सूची तैयार की गई है ये कितनी सही है? क्या हाईकोर्ट ने इसी वजह से रद्द कर दिया? क्या हाईकोर्ट में इसमें कोई शंका नहीं हुई होगी जो हाईकोर्ट ने इसको रद्द कर दिया? और ममता बनर्जी कह रही है कि ये आरक्षण के मुद्दे जितने हैं वो संविधान के अंतर्गत आता है, इसी वजह से ये सूची हमने तैयार कराई थी। अगले सुनिए, उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 1993 के तहत ओबीसी की नई सूची तैयार करनी होगी और अंतिम अनुमोदन के लिए सूची को विधानसभा में अनुमोदन लेना होगा। और हाई कोर्ट ने ये कह दिया है, हाई कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का फैसला थोपने का यहाँ पर ममता ने पूरा का पूरा ये जो कह रही हैं कि अभी अभी आने दीजिए सूची, में खेला करूंगी, एक बार फिर से खेला करूंगी कह रही हैं, खेला करूंगी। तो देखिए वहां जनता का विश्वास ममता बनर्जी खो दिया है। ममता बनर्जी कह रही है कि 3 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें बीजेपी ने यहाँ पर धांधली की है। संदेश खाली का मुद्दा हो, चाहे चुनाव आयोग को खरीदने का मुद्दा हो, और जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में दहशत फैलाना हो, 3 मुद्दे पर बीजेपी को वोट नहीं जाने वाला। जबकि बता दें बड़े बड़े चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बड़ी खिसक रही है ममता की जमीन, और जब से नंदीग्राम से हारी हैं हो सकता है उसी का इंपैक्ट हो कि अभी भी लोकसभा चुनाव में वो कैरी फॉरवर्ड होगा। और इसी तरीके से ममता बनर्जी पर अभी हर तरीके से संदेश खाली का मुद्दा हो जाए, चाहे वहां पर दहशत कराने के मुद्दे पर, चाहे वहां पर सेंट्रल फोर्सेस के बावजूद भी दंगा भड़कने पर, तो देखिए घिर गई है। कितना दिन चलेगा आपका? और ये नाटक नौटंकी और ये जिस तरीके से वहां पर सांप्रदायिक दंगे फैलाने में मशहूर है ममता बनर्जी, जो बीजेपी आरोप लगाती है, कितना दिन चलेगा ये? आरक्षण के मुद्दे पर तो नहीं चलेगा, संविधान के मुद्दे पर आप कुछ जजमेंट दे देंगी तो नहीं चलेगा। और यही वजह है कि यहां पर सिर्फ वोट की राजनीति के लिए ममता बनर्जी ने अब ओबीसी के आरक्षण से भी छेड़छाड़ कर दिया है। और ठीक बिल्कुल इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने जो किया। कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार कर रही है और जो कर चुकी, उसको ममता जो है वो कॉपी करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहां पर कॉपी करना भारी पड़ गया है और इसी तरीके से कॉपी करने का ये अंजाम भुगतना पड़ा। हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी आई और ओबीसी सर्टिफिकेट को हाई कोर्ट ने दे दी है नामंजूरी। और ये पश्चिम बंगाल की सूची थी। तो कलकत्ता हाईकोर्ट को आज जमकर घेर रही थी। और देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानूंगी और कभी भी मैं ये नहीं होने दूंगी। पश्चिम बंगाल में हमने आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया है। बीजेपी आएगी तो आरक्षण को के साथ छेड़छाड़ करेगी, बीजेपी आ गई तो संविधान को बदल देगी। और बीजेपी शरारती लोग, देखिए क्या कह रही हैं, ये शरारती लोग अपना काम एजेंसियों से करा रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी को कह रही है शरारती लोग हैं और एजेंसी से अपना काम करा रही हैं, हम बीजेपी का आदेश नहीं मानेंगे। तो देखिए ये बीजेपी का आदेश नहीं है, ये हाई कोर्ट के जज का आदेश है जो ममता को किसी भी सूरत में मानना तो होगा ही। लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी अधिकार को छीनना चाहती है ममता बनर्जी। आप राय रखिए और पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है तो बताइए वहां पर आखिर इस बारे में क्या माहौल है और ममता के बारे में लोग कितना समर्थन में है और कितने ममता के विरोध में है। और वैसे भी देखिए 24 मई को साधु संतों का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन ममता बनर्जी के खिलाफ होगा। तो चुनाव में शाम दाम दंड भेद का जो राजनीति है वो ममता बनर्जी अपनाती नजर आती है। जहां भी हो तुष्टीकरण की राजनीति चला दो, साधु संतों का अपमान कर दो, इससे लोग कुछ खुश हो जाएंगे, कुछ संप्रदाय के लोग खुश हो जाएंगे। तो इसी वजह से देखिए ममता बनर्जी चौतरफा घिर चुकी हैं। लेकिन ये बड़ा मुद्दा है, ये साधु संतों का अपमान वो भी बड़ा मुद्दा है और ये भी बड़ा मुद्दा है कि आरक्षण के साथ जो सूची तैयार की गई है इसको हाई कोर्ट के नामंजूरी के बाद भी ममता बनर्जी रट लगा रही है कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे। तो जरूर आप अपनी राय रखिए। बहुत शुक्रिया आपका।